Hi everyone. After the completion of the basics of pharma in like pharmacodynamics and pharmacokinetics, I am starting with the drugs. So this is Lisha Roy and my first drug is your cholinergic drugs. In cholinergic drugs, in this lecture we are gonna study the general consideration. Two topics in the general consideration, that is organization and second is neurohumoral transmission. Third is cholinergic transmission and fourth is cholinergic drugs. Okay, so let's start with the general consideration. Okay, so the first topic is your organization. Okay, so first we will complete what is organization. Organization is, or your in organization there is some general consideration like there are two types of consciousness, below level of consciousness and visceral functions. First of all, I just want to tell you all the general considerations. Okay, so what is cholinergic drug? I will explain first. I will tell you all the main points. That's why I have started with your general considerations, right? So in general considerations, I am in the whole topic. I will tell you each and every point in a very short and explainable manner. If anyone want to make a notes of it, can easily make it off, as well as you can ask me the question on it. Okay, so first thing, general considerations. What is general consideration of a cholinergic drug? First, it are having visceral function. Visceral functions. What is visceral functions? Efferent. Efferent. What is visceral function? Visceral function is something which is for your internal organ. Efferent, central and efferent. Right. Second thing. What is the second? First it is controlling your internal organ, the visceral function. Efferent, efferent, central. Right. Now second is your hypothalamus. Hypothalamus control of CNS. It controlled by hypothalamus. How it controlled? It controlled by hypothalamus. And which nervous system it controlled? It controls CNS. Which nervous system it controlled? It controlled CNS. Okay. Then third is your post and lateral nuclei. Third is your post and lateral nuclei, which is sympathetic. Okay, the first consideration is your controlling the visceral part. Second, with the help of hypothalamus to the ANS, and the third is the sympathetic, that is by your lateral or your posterior nuclei. Okay, now come to your fourth general consideration. What is your fourth general consideration? That is your motor limb of ANS. That is your motor limb of ANS. Motor limb of ANS. Okay, so this is your fourth considerations. Now come with the topic. First, if we want to understand the functions of the cholinergic, we have to understand the cholinergic effect on your sympathetic and parasympathetic. Okay, as I have told you कि ये हम लोगों के posterior और lateral nuclei में act करते हैं. That definitely means कि हम लोग को सबसे पहले sympathetic और parasympathetic के बारे में पढ़ना जरूरी है. Okay, so just write about your sympathetic and parasympathetic. This all comes into your general considerations only. Okay, so this is your sympathetic. Here I will write about parasympathetic. Right? So in sympathetic, first of all, origin. What is sympathetic? What is parasympathetic? It is the part of your ANS. Okay, we are having your CNS, ANS. Okay,
controls your both sympathetic, parasympathetic. The difference between sympathetic, parasympathetic is, first start with your origin. Origin, this is dorso-lumbar. This is your dorso-lumbar in origin. And here it is your craniosacral in origin. Here it is your craniosacral in origin. Second thing, distribution. Distribution. This is wide. This is wide. Why this is wide? But I just tell you. But here it distributes to head, neck, face. Head, neck, face, and trunk. And trunk. Okay. Then third thing. Third thing is your ganglia. As it is away, so the it is away, but this is close. Okay. Then your fourth thing is your post ganglion. Post is your long, but here in parasympathetic it is short. Then come to your neuroeffector. It is very important. Neuroeffector. This is adrenaline. This is adrenaline. Sorry, this is non-adrenaline. And this is acetylcholine. This is acetylcholine. So I again repeat the differentiation between your sympathetic and parasympathetic. What is sympathetic? The origin is of dorsolumbar. Here the origin is craniosacral. Here the sympathetic distribution is wide. Here the parasympathetic distribution is in head, neck, face and trunk. Here the ganglia is away, but here it is close. Then in the post ganglion it is long, as there is a distribution wide, but here there is short. Then in neuro it is non-adrenaline and this is acetylcholine. Okay. So here it completes your general consideration. So what we have learned in general consideration, where it affect? Obviously it affect in sympathetic, parasympathetic, in visceral organs and effect in visceral organs by three types: central, efferent and efferent. Okay. And the third thing which we have studied is its work in your hypothalamus. Okay. In posterior and lateral nuclei. Okay. This all the things we have covered in your general consideration. Now come to your main cholinergic drugs, that where it what is the function of it? See, by the sympathetic mean, the function is the management of energy. Is the management of energy. Okay. But by the parasympathetic, there is your storage of energy. Storage of energy. Okay. So this is your management of energy, that is your storage of energy. Now, what is the sympathetic only? Where in practically where we are finding our sympathetic nervous system? We can find our sympathetic nervous system in your blood vessel, spleen, sweat gland, and hair follicle, Okay. But where we can find our parasympathetic? In ciliary muscle, bronchial muscle, gastric muscle. Here we can find our parasympathetic. Okay. Now come to your second topic. Here we have completed our general consideration. Now my second topic is neurohumoral transmission. What is a neurohumoral transmission? I will explain that in a diagram only. It is very easy. You will understand it. See. For example, this is your neural junctions. Okay. So what happen is, there are 5 steps. First, impulse. How the impulse generated? By sodium. First step, impulse. Second step is your release of neurotransmitter. But how it happens? See, what happens is,
सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे सोडियम जाता है। जैसे ही सोडियम का अमाउंट इसमें ज्यादा होता है, यहाँ से हम लोग का पोटेशियम का अमाउंट हम लोगों का एक्स्ट्रा रिफ्लक्स करता है। यहाँ पे हम लोगों का इंटरनली मतलब कि इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन में ये हम लोग का जाता है। फिर क्या करता है ये हम लोगों का, ये हम लोग का पोलराइज होना शुरू करता है। फिर क्या करता है ये हम लोग का पोलराइज होना शुरू करता है। आफ्टर दैट हम लोगों का क्या होता है, जैसे हम लोग का ये अमाउंट ज्यादा हो जाता है वैसे ही हम इसमें डीपोलराइजेशन शुरू करते हैं। डीपोलराइजेशन जैसे ही शुरू करते हैं तो उस यहाँ पे हम लोग के छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर डिपॉजिट रहता है। ये क्या करता है, ये हम लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। ये हम लोगों का क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इम्पल्स बाय सोडियम। ये हम लोगों का सेकंड क्या हुआ, रिलीज ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, नाउ थर्ड इज योर एक्शन ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। ये जो थर्ड होता है ये होता है हम लोग का एक्शन ऑन योर पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। एक्शन ऑन योर पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन में ये कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो भी हम लोग के वेसिकल्स है ये यहाँ पे आके हम लोग का अपना ट्रांसमिशन करता है। जो भी हम लोग का एसिटाइल कोलाइन हो या फिर आपका कोलिनर्जिक में अदर जैसे सिंपैथेटिक हम लोगों को कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो वो भी। नाउ कम टू योर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, हम लोग का पोस्ट जंक्शनल एबिलिटी होता है। पोस्ट जंक्शनल एबिलिटी होता है। ये हम लोगों का दो टाइप का होता है। एक हम लोग का होता है एक्सीबिटरी, एक होता है हम लोग का इनहिबिटरी। या तो ये फंक्शन को रोकेगा या ये फंक्शन को और ज्यादा बढ़ावा देगा। ओके, और लास्ट में क्या होता है, जब हम लोगों का सारा काम हो जाता है, आफ्टर द वर्क फिनिशेस, तो फिर हम लोगों का क्या होता है, तो फिर होता है हम लोग का टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसमीटर एक्शन। देन द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन. So in the 5 step we have completed our neurohumoral transmission. This is the second topic of your cholinergic drug. तो फिफ्थ टॉपिक में से सेकेंड टॉपिक था न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ओके, तो इसमें मैंने ये बोला कि इसमें आपके 5 स्टेप से ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इम्पल्स, जो कि हम लोगों का रिफ्लक्स इफ्लक्स दोनों में होता है। सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। पहले पोलराइजेशन होता है, फिर हम लोगों का डीपोलराइजेशन होता है, फिर हम लोग का रिपोलराइजेशन होता है। उसके बाद जितने भी हम लोगों का इनिशिएशन होता है हम लोगों का आपका न्यूरॉन्स का, फिर रिलीज ऑफ द न्यूरॉन्स होता है, फिर हम लोग का पोस्ट सिनेप्टिक में जाता है। पोस्ट सिनेप्टिक में जाकर के वो उसका मेम्ब्रेन या तो इनहिबिटरी होता है या फिर आपका एक्सिबिटरी होता है, और लास्ट में क्या होता है, हम लोग का ट्रांसमिशन हो जाता है। जैसे हम लोग का फंक्शन जो खत्म होता है फिर हम लोग उसमें वो रुक जाता है। ओके, नाउ कम इनटू योर को ट्रांसमिशन। एक वर्ड आता है आपका को ट्रांसमिशन में, न्यूरोह्यूमरल में। को ट्रांसमिशन क्या होता है, को ट्रांसमिशन होता है कि एक टाइम पे दो न्यूरॉन स्टिमुलेटर का ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया कि यहाँ पे दो आपके रिसेप्टर्स है या फिर दो आपके न्यूरल ट्रांसमीटर है। ये जितने भी सर्कल्स है ये फर्स्ट टाइप है, और जितने भी आपके ये ट्रायंगल्स है ये आपका सेकेंड टाइप है। तो हम लोग को जो पोस्ट सिनेप्टिक होता है ये हम लोग का प्री सिनेप्टिक हो गया, ठीक है, ये हम लोग का प्री हो गया, ये हम लोग का पोस्ट हो गया। तो यहाँ पे भी दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो एक टाइम पे जब हम लोग का दो रिसेप्टर्स या दो न्यूरल ट्रांसमिशन होता है तब हम लोग उसको को ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये भी हम लोग का न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के ही टॉपिक में ये हम लोगों का आता है। अब हम लोग आते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स? There are 2 types of cholinergic receptors. It is very important because it's all about your neural transmission. Okay. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम लोगों का कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होता है वो हम लोगों का कैसे ट्रांसमिट होता है। सेम प्रोसेस, जैसे मैंने आपको न्यूरल ह्यूमरल ट्रांसमिशन हम लोग को कोलिनर्जिक
कोलिनर्जिक से उतना लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोगों का फंक्शन कैसे हो रहा है। ओके, अब हम लोगों का आता है आपका कोलिनर्जिक का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। कोलिनर्जिक का ट्रांसमिशन हम लोग एक एक स्टेप में आपको इसमें लिख के दिखाऊंगी, पर डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है, हम लोग का काम करता है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, यही हम लोगों का कोलिनर्जिक ड्रग में हम लोगों का काम करता है। फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या होता है, ये हम लोगों का ट्रांसमिट होता है, ओके। पर कुछ चीजें होती हैं जैसे बोटुलियम टॉक्सिन जो होता है वो हम लोगों को रोक सकता है एसिटाइल के ट्रांसफरेज के लिए, ओके। एज वेल एज ये एसिटाइल कोलिन, ये हम लोगों को दो टाइप के रिसेप्टर से हम लोगों का ट्रांसमिट हो सकता है, या तो मस्कुलिनिक या फिर निकोटिनिक, ओके, या फिर निकोटिनिक। ये दो टाइप से आपका ये हम लोग का ट्रांसमिशन हो सकता है। एज वेल एज इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम लोगों का जब जैसे मान लो कि कोई रोक रहा है या फिर किसी भी कारण से इनहिबिशन हो रहा है, या तो ये बोटुलियम से होता है या फिर आपका ACH एसिटाइल CHT एंजाइम के कारण भी होता है, ओके। इन अ शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि एसिटाइल कोलाइन के हेल्प से हम लोगों का कोलिनर्जिक ड्रग कैसे हम लोग का ट्रांसफर हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रांसफर हो तो गया, पर यहाँ पे हम लोगों का क्या है, यहाँ पे है हम लोगों के रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या है हम लोगों के रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स अब दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका, मैं ये बीच में लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे। हम लोग स्लाइड के तीसरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, दैट इज योर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हम लोगों के दो टाइप के हैं, मस्क्यूरैनिक और या फिर निकोटिनिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये है कि जो मस्क्यूरैनिक होता है वो जी प्रोटीन बाउंडेड होता है। ये क्या होता है, ये जी प्रोटीन बाउंडेड होता है, ठीक है। पर जो हम लोग का जो निकोटिनिक होता है वो हम लोगों का लाइगेंड गेटेड चैनल से होता है, लाइगेंड गेटेड चैनल से बाउंड होता है, ओके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मस्क्यूरैनिक एंड निकोटिनिक। अब हम लोग एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको मस्क्यूरैनिक का। मस्क्यूरैनिक क्या होता है, ये आपके कहाँ कहाँ रहता है, ये आपके हार्ट में रहता है, ये आपके ब्लड वेसल्स में रहता है, ये आपके आईज में रहता है, ये आपके स्मूथ मसल्स में रहता है, ये आपके स्मूथ मसल्स में रहता है, ओके। इवन ये आपके GIT ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, GIT ग्लैंड, देन एंडोक्राइन ग्लैंड, इन सब में आपका मस्क्यूरैनिक होता है। इवन आपके ये आपके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इवन ये आपके UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में भी रहता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर पे सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि एसिटाइल कोलाइन से ये होता है, पर कभी कभार ये हम लोग का मतलब रुक भी सकता है, इनहिबिट भी हो सकता है किसी एंजाइम से या बोटुलियम टॉक्सिन से। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसमिशन तो हुआ, पर कहाँ ये ट्रांसमिट हुआ, ये हुआ आपके दो रिसेप्टर्स में, या तो मस्क्यूरैनिक में हुआ या फिर आपके निकोटिनिक में हुआ। ये आपके कैसे डिफरेंशिएट होता है, एक आपका जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर से बाउंड होता है, एक लाइगेंड गेटेड चैनल से बाउंड होता है। आपका जो मस्क्यूरैनिक है वो कहाँ पे आपका रहता है, ये आपका रहता है या तो ब्लड वेसल्स में रहता है, ग्लैंड्स में रहता है, एंडोक्राइन में रहता है, आपका टीयर्स में रहता है, ये आपके यहाँ पे रहता है, ओके। आई ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड में रहता है, देन आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में रहता है, ओके। अब मैं आपको बता रही हूँ ये एक्टिवेट मतलब कि स्टिमुलेट किससे होता है, ओके। ये आपका स्टिमुलेट किससे होता है, ये जो आपका जो स्टिमुलेट होता है ये होता है आपका मस्क्यूरैनिक से, पर और जो इनहिबिट होता है वो होता है आपका एट्रोपिन से, ओके। तो ये स्टिमुलेट किससे होता है, ये स्टिमुलेट होता है मस्क्यूरैनिक से, पर ये हम लोगों का इनहिबिट किससे होता है, इनहिबिट होता है हम लोग का एट्रोपिन से, श्योर।
अब आते हैं हम लोग मैस्क्यूरेनिक के सब टाइप्स में। ये हम लोगों के 5 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। फंक्शनली हम लोग का 3 टाइप्स का होता है। M4, M5 के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, मेनली आपके M1, M2 और M3 के बारे में होता है। M1 जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स में होता है। M1 आपके गैंग्लियोनिक सेल्स में होता है, ओके। M2 जो होता है वो होता है आपके कार्डियक रिसेप्टर्स में होता है। कहाँ पे होता है ये, आपके कार्डियक रिसेप्टर्स में होता है, ओके। और जो M3 होता है वो आपके स्मूथ मसल्स में होता है। ये आपके कहाँ पे होता है, स्मूथ मसल्स में होता है। तो ये रहा एंड में मस्क्यूरेनिक टॉपिक। मैं अब आ जाती हूँ आपके निकोटेनिक टॉपिक में। आपको मैंने क्या बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग का ट्रांसमिशन कैसे होता है, 2 रिसेप्टर में होता है। एक होता है आपका एक होता है आपका मैस्क्यूरेनिक, एक होता है आपका निकोटेनिक। जो मैस्क्यूरेनिक होता है ये आपके और भी 5 सब टाइप्स में होते हैं और ये आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाउंड करते हैं। 5 टाइप्स का होता है जिसमें 3 टाइप्स होता है। जो फर्स्ट टाइप जो होता है वो आपका गैस्ट्रिक में होता है, सेकेंड टाइप में जो होते हैं वो आपके कार्डियक में होते हैं और जो थर्ड टाइप के जो होते हैं वो आपके होते हैं स्मूथ मसल्स में। अब आ जाते हैं हम लोग निकोटेनिक में। निकोटिन एक्टिवेट किससे होता है, ऑब्वियसली ये हम लोग का निकोटीन से ही एक्टिवेट होगा, राइट। और ये आपका मतलब इनहिबिट किससे होता है, ठीक है। तो ये जो इनहिबिशन जो हम लोग का जो शो करता है ये हम लोग को शो करता है टोल्ब्यूक्यूरैन या फिर हेक्सामिथेजोन, ओके। ये दोनों के कारण हम लोगों का क्या होता है, जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो हम लोग को इनहिबिट और एक्टिवेट करता है ना। इसके आप सब टाइप्स हम लोगों को पढ़ना है। ये हम लोग के सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, NM and NN। अब इन दोनों में डिफरेंशिएशन कहाँ है। NM जो होता है वो हम लोग का स्केलेटन मसल्स में होता है। ये हम लोग का कहाँ होता है, स्केलेटन मसल्स में होता है। ये हम लोग का कहाँ होता है, स्केलेटन मसल्स में होता है। पर जो NN है, M स्टैंड्स फॉर स्केलेटन मसल्स, पर जो NN है वो होता है हम लोग का गैंग्लियोनिक सेल से। N स्टैंड्स फॉर नर्व, तो ये कहाँ पे होता है हम लोगों का, गैंग्लियोनिक सेल्स में होता है। श्योर। अब आते हैं हम लोग इसमें कि इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है आपका टोल्ब्यूरामाइन और NN का एग्जाम्पल है आपका हेक्सामेथासोन। Okay, so these are the examples. Now my last topic is there कि cholinergic drugs. What are the cholinergic drugs? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इसमें cholinergic drugs में, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया कि ये हम लोग का जनरल कंसिडरेशंस क्या क्या है। ये हम लोग का विसरल ऑर्गन्स में काम करता है, ये हम लोगों के न्यूक्लियाई में काम करता है, पोस्टीरियर एंडियोलैटरल। फिर मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या क्या डिफरेंशिएशन है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें आपका कैसे ये ट्रांसमिट करता है, उससे पहले मैंने आपको बताया न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, ताकि आपको पता चले कि अब ये ट्रांसमिट कैसे करता है। ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को रिसेप्टर्स का जरूरत होता है, जो कि हम लोग के 2 टाइप के हैं, एक मस्कुलिनिक एक निकोटिनिक। दोनों के बारे में और उसके सब टाइप्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक, दैट इज योर कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, नेम याद करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, but I will give you a little your example. For example, what are the subtypes of it? For example, your pilocarpine. मैं आपको सिर्फ 2 या 3 ही ड्रग्स के बारे में बताऊंगी, इसलिए मैं बताऊंगी क्योंकि मैं एंटीकोलिनर्जिक में और भी ड्रग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ओके। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं पिलोकार्पिन, कुछ ड्रग्स के बारे में। इट हैविंग व्हाट, मैस्क्यूरेनिक एक्टिविटी। ये क्या होता है हम लोग का, क्या शो करता है, मैस्क्यूरेनिक एक्टिविटी शो करता है। ये हम लोग के आई ड्रॉप्स में यूज होता है, ये हम लोग के आई ड्रॉप्स में यूज होता है 0.5% to 4%। सेकेंड ड्रग इज योर मैस्क्यूरेनिक, दैट इज वन थिंग मोर, पिलोकार्पिन जो होता है फॉर एग्जाम्पल जो मैस्क्यूरेनिक होते हैं वो हम लोगों का मशरूम पॉइजनिंग में भी हम लोगों का काम आता है, मशरूम पॉइजनिंग में भी ये हम लोगों का काम आते हैं, ओके। नाउ द सेकंड ड्रग इज योर एडिकोलिन।
कोलिन। एरिकोलिन में क्या होता है, ये आपका मैस्क्यूरेनिक भी होता है, निकोटेनिक भी होता है, प्लस सीएनएस एक्शन भी शो करता है, ठीक है, एरिकोलिन। और क्या होता है इसमें जो ड्रग्स आपके सीएनएस एक्शन करते हैं, जो ड्रग्स आपके सीएनएस एक्शन करते हैं, उसमें कोई भी सेंट्रली एसिटाइल कोलाइन को इफेक्ट नहीं करता है, एसिटाइल कोलाइन को इफेक्ट नहीं करता है। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगी, इवन मैं आपको इसमें भी बताऊंगी कि इसमें कार्बामेट, एर्किडीन ये भी आता है, पर वो सारी चीजें मैं आपको एंटीकोलिनर्जिक में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो उसका भी पार्ट है। तो हियर आई एंड्स माय दिस योर कोलिनर्जिक वाला ड्रग का लेक्चर। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू नो, you can either pin me or message me. Please subscribe my channel. Thank you and have a nice day.